السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جناب خیریت ہے الحمد حضرت؟ للہ سب ٹھیک ہے. بس اللہ کا احسان ہے، آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں. اور کیسے ہیں؟ ناسک نہیں ہے کیا؟ ہاں حضرت ناسک میں ہی ہیں. اللہ اپنا کرم فرمائے. بس بیچ میں رہنا چاہیے دونوں کے. بالکل بالکل یہ دونوں کے اندر گڑبڑیاں ہیں صاحب، بہت خطرناک گڑبڑیاں. نہلے پہ دہلا ہے نام معاملہ. بالکل ہے، بالکل ہے. آپ تو خوب دھمال مچا رہے ہو. اچھا صحیح. نہیں میری بات لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں بیچ کی بات کرتا ہوں، میں دیوبندی نہ بریلوی. سمجھ میں لوگوں کے آ رہی ہے، لیکن نا وہ جو آپ مدینہ شریف کے جو امام کو بیچ میں لاتے ہو نا، وہ ایسے کسی کے نام سے مت اچھالو کوئی بات. اچھا ہاں، اس سے تھوڑا فرق پڑتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آپ بھی گڑبڑ ہے. اچھا. ہاں مدینہ شریف کے نام سے. ہاں، کسی کا نام نہ اٹھاؤ. آپ تو قرآن اور حدیث پہ ہی کافی ہیں. آپ اہل بیت پہ قرآن حدیث پہ بات کریں گے نا، اتنے ہی سب کو بھاری پڑ جائیں گے. ہاں یہ امام موسیٰ کاظم کو بھی کہاں بریلوی لوگ چرچا کرتے ہیں ان کا. پھر ارے وہ تو حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا ہے، امام التقی. ہاں تو بریلوی لوگ کہاں چرچا کرتے ہیں ان کا. حضرت امام نقی کا، حضرت امام حسن عسکری کا. آواز تھوڑی صاف نہیں آ رہی ہے حضرت آپ کی. یہ بریلویت تو اب دنیا میں ختم ہو رہی ہے صاحب. ابھی تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہاں اگر ایسا ہی یہ لوگ نہیں سدھرے تو گڑبڑ ہو جائے گا، پھر ہو میرے جائے گا. ناسک میں لگ بھگ سمجھ لو 10% بریلوی ختم ہو جائے گی کم بیش کوئی دن نہیں، ناسک میں تو بہت دمال ہے ابھی ان کا. ہے نا. ناسک میں نہیں ہو رہی. ناسک میں بہت ہے، یعنی بریلویت زیادہ ہے ناسک میں. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. نے وہ اندھا رکھا ہے نا ان کو، نابینا رکھا ہے کچھ. حق سے ظاہر، حق ظاہر نیچے ان کے اوپر. ویسے کچھ دن بعد ناسک میں ہو جائے گا، دیکھ لینا. ہو جائے گا. ایسے آپ جیسے لوگ 10-20 لوگ اگر کھڑے رہے اور حق بتاتے رہے تو تب آ جائے گا سامنے. وہ حافظ منیر الدین صاحب کو ملاقات کیے تھے، ناسک میں تھے حافظ منیر الدین. نہیں، میری ملاقات، میں جانتا بھی نہیں نا ان کو. مفتی اعظم کے خلیفہ تھے وہ. اچھا اچھا، نہیں میری ملاقات اور نہیں ہوئی ہے. شہنشاہ ناسک کے مزار پہ گئے کبھی آپ؟ اب وہاں تو بہت جانا آنا رہتا ہے، ابھی کبھی جلدی میں ان نہیں کا گئے. ترجمہ دیکھ لینا آپ. ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے نا، اچھا. میں نے خود دیکھا. وہی دیوبند والوں جیسا، جیسے یہ لوگ بریلی لوگ کافر ہونے کا چکر لگاتے ہیں، وہی تو وہی ترجمہ آپ دیکھ لینا. وہی درگاہ میں رکھا ہے 3.5 کو. میں نے خود دیکھا نا. میں نے معلوم ہوا کہ انہوں نے ترجمہ کیا. تو میں ایک بار آیا تھا تو میں نے ترجمہ خاص طور سے دیکھا کہ یہ لوگ اسی پہ کفر کے پتے لگاتے ہیں. تو وہی ترجمہ جو دیوبند والے کرتے ہیں. برابر. بتائیے، یہ لوگ دوسروں کو جو کافر بناتے ہیں، وہ ترجمہ وہی ہے ان کیا. دیوبند والوں کا وہ علامہ شہنشاہ ناسک. طریقے تھوڑے الگ الگ ہیں، باقی نا ملی جلی سرکار ہے. یہ بات آپ نے کہی. نہیں ملی جلی تو نہیں ہے، نہیں ہے، کچھ باتوں میں اتفاق ہے ان کا. بہت سی باتوں میں ہے. ہاں، بہت باتوں میں اتفاق ہے. اور جہاں ان کے مولویوں کی بات آتی ہے تبھی یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. دیکھو دونوں میں کمی. میں نے تو دیکھا دونوں کتابوں میں گڑبڑ خڑبڑ. دونوں کتابوں میں. آپ تو حضرت دین کے جانکار ہیں، علم کو پہچاننے والے ہیں. ہم لوگ تو خیر چکروں میں پڑھنے ہی بیکار ہے ان دونوں کے. بلکہ مانو کہ دونوں میں گڑبڑ. بس بس مین پر مدعا اپنا یہی سیدھا ہے. رستہ دونوں کے بیچ میں چلتے رہو. دین، ہم نے تو یہ سمجھایا حضرت کہ دین کسی کے باپ کا نہیں ہے. بس اپن کو چاہیے ان دونوں سے ملو، ملاقات کرو، ہاں، اور جو گڑبڑ سڑبڑ ہو اس سے دور رہو. بس 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 اب وہی اچھا ہے. کل ہمارے یہاں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں ہاں ہمارے یہاں سب جانتے دیوبند والے. ہاں نماز پڑھائی اور دعا مانگتے اس نے ضرور نہیں پڑھا. اچھا. اللہم انت السلام پڑھا اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون یہ آیت پڑھی. میں نے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ نے درود صحیح نہیں پڑھا تو بغیر درود کے دعا قبول نہیں ہوتی. تو کہنے لگا حدیث سے ثابت نہیں ہے درود پڑھنا دعا میں. تو پھر میں کتاب لے کے آیا، وہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے درود شریف کے بارے میں. تو میں کہ دیکھو لکھا ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس دعا میں درود پاک نہیں پڑھا جائے دعا آسمان زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے. تو نہیں مان رہا صاحب. وہ تو اتنا بڑا بندہ لکھنؤ میں پڑھاتے ہیں کہ مطلب وہ مان ہی نہیں رہا. حضرت عمر کا قول بھی نہیں مان رہا.
अरे वो तो अंदाजा लगा नहीं, वो बाकी इमाम तो हमारे यहाँ जरूर शरीफ पढ़ते हैं, वो लखनऊ से आ गए थे एक बार, यहीं के रहने वाले हैं, पढ़ाने लगे तो हजरत उमर का कौल भी नहीं मान रहे, हजरत उमर को भी ऐसी समझ रहे हैं, अल्लाह जाने क्या मालूम क्या समझ रहे थे। अरे मैंने कुछ कहा कि नहीं हजरत उमर का कौल है जो दुआ में, जिस दुआ में जरूर नहीं पढ़ा जाए लटकी रहती है, तो वो सुन के ये भी नहीं कह रहा अच्छा उनका कौल है तो बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, ये भी नहीं कह रहा। वो बल्कि कह रहा कि उन्होंने लिख दिया होगा, थानवी साहब ने लिख दिया होगा, उनको भी ऐसी समझ है, थानवी साहब को भी। अरे यार अपने आलिम को ही तू नहीं मान रहा तो फिर किसे मानेगा तू, बिला वजह। इन लोगों ने भी कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिससे बरेली लोग गुस्सा होते हैं, सही बात है। नहीं नहीं, गलतियां बहुत ज्यादा है, और ये भी अपनी अड़ीबाजी में मतलब नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ और आलिम से मैंने पूछा ना देवबंद वाले से, तो सबने एक कहा नहीं साहब दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए पहले बाद में। देवबंद के आलिम ने भी कहा, यहाँ तक कि सहारनपुर से ही मैंने पूछा, मुफ्ती आकल साहब के लड़के थे, तो उन्होंने भी यही बताया दालूम देवबंद का फतवा है कि दुआ से पहले यानी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। देवबंद का फतवा है, पहले हमदो सना करे फिर दुरूद पढ़े, फिर लास्ट में फिर दुरूद पढ़े, फिर हमदो सना करे। और एक बात मेरे समझ में नहीं आती हजरत, ये फाता के इतने बड़े खिलाफ हैं भाई, तुम्हारी फाता से कौन से तुम्हारा ईमान का कुरान की आयतें पढ़ रहे हो, उसका सवाब रहे हो, उसमें कौन सा ईमान जा रहा है तुम्हारा? अरे मैं कह रहा हूँ भोपाल चले जाओ तो भोपाल में लोग खड़े खड़े खाना खिलाते हैं शादियों में, यही जमाती लोग। तो कहना ये कौन सा, ये तुम्हारे यहाँ भोपाल में 90 साल से इज्तिमा हो रहा है, 80 साल से, तो आज तक तुम्हें यही तमीज नहीं आई कि बैठ के खाना खिलाना चाहिए सुन्नत के मुताबिक? खड़े खड़े खाना खिलाते हैं भोपाल में, आप जाके देख लेना 90% शादियों में खड़े खड़े खाना खाते हो, खाना बहुत फेंकता है वहाँ पर, बहुत ज्यादा खाना फेंकता है भोपाल में। सही बात है, मैं तो भोपाल में जाके देख लेना तो आपको 90% शादी इन मौलवियों की शादी है, जो बड़े बड़े मौलवी मुल्ला है ना, इनकी शादियां भी वैसी होती हैं सुन्नत के खिलाफ। टेबल पे या तो कुर्सी या फिर खड़े खड़े, दोनों तरीके सुन्नत के खिलाफ हैं। अब आप ये देखिए हजरत, हम तो खैर जाहिल आदमी है, बगैर पढ़े लिखे हैं, हमें तो कुछ मालूमात नहीं। कुल मिला के मैं बताऊं दोनों में कुछ न कुछ कमी ऐसी है कि अपन एक का फेवर नहीं कर सकते। हाँ, अब नहीं जा सकते फेवर में, नहीं एक के फेवर नहीं जा सकते, यही मानो कि दोनों में कुछ न कुछ कमी। अब एक बात देखो, हम तो खैर उस गढ़ में रहते हैं जहाँ बरेलवियत है, और समझे, और हम बहुत 10-12 साल रह के आया हूँ। कहाँ पर? दिल्ली में। वो देवबंदियत तो गए। हाँ, तो हमने दोनों को भांप लिया अच्छी तरह से। अब इधर क्या है देखो, अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना बहुत कम होती है। अच्छा, कहाँ पर? हाँ, बरेलवियत में ही मैंने देखा है, मीला शरीफ वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, समझे? जो है वो कितनी मस्जिद है नासिक में? 80 मस्जिदें तो होंगी। नहीं, इतनी शुमार तो मैंने नहीं की है, होंगी 100 के करीब। हाँ, हो सकता है, बड़ी सिटी है बड़ी। इतनी नहीं होंगे, हो सकता है, क्योंकि अभी एरिया बहुत बड़ा हो गया है, वटाला का एरिया बहुत बड़ा है, दूध बाजार तो था ही था। नासिक है बहुत कट्टर बरेलवी। हाँ बिल्कुल कट्टर वाले। मैं तो समझता हूँ कि इंडिया में पहले नंबर में है नासिक। हाँ बिल्कुल सही बात। नंबर पे ये है, क्या कहते हैं, उदयपुर। हाँ, नासिक के बाद उदयपुर का नंबर आता था। सही फरमा रहे हैं। कहो कि नासिक से भी ज्यादा उदयपुर। ना उदयपुर में तो कब्र उखाड़ के फेंक दी थी देवबंद वाले की। नहीं, कुछ बातें हैं साहब ऐसी जिससे मुझे भी इन पे गुस्सा आता है लोगों पे। नहीं, आपकी बातें ना बहुत ज्यादा, करीब 75-80% तो आपकी बातें बिल्कुल सही है, वजह है, कहीं कहीं आप फंस जाते हैं, हो जाता है कभी कभी। हाँ, कल वाली बात से मैं कह रहा हूँ ना, कल जब उसने नमाज पढ़ाई तो मैं खड़ा होकर कहा, मैं कि आपने दुरूद नहीं पढ़ा। हाँ, तो कहना हदीस से साबित नहीं है। मैंने ला के दिखाई भी किताब, हजरत थानवी साहब के देवबंद के आलिम में उनको ही बताया मैंने कि उन्होंने खुद लिखा राजू सईद ने। तो कहना हाँ उनको कॉल मिल गया हुआ हजरत उमर का, यानी फिर मैंने और उलमा से तस्दीक की ना देवबंद वालों से, तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए पहले बात। तो अपन सबको कैसे कह लेते हैं? देवबंद वालों में अगर एक दो ऐसे हैं तो उनकी वजह से अपन सबको क्यों कहें? ये इन एक दो की वजह से तो फिर बदनाम हो जाते हैं ना लोग। अब वही बात समझ में आ रही है कि इसमें जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जो बगैर पढ़े लिखे हैं, जिनको दीन की मालूमात नहीं है, तो तुम्हारी नजर में सब काफिर हैं। अब देखो, वो जो मैंने सहारनपुर से तस्दीक की देवबंद के आलिम से, तो यही कहा कि दालूम देवबंद का खुद यही फतवा है कि पहले हमदो सना करे, फिर दुरूद पढ़े,
फिर दुरूद पढ़े, फिर हमदो सना कह के दुआ खत्म करे, यानी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े और अव्वल आखिर अल्लाह की हमदो सना भी करे। अब तो जब कुछ ताजुब देवबंद का फतवा है तो क्यों बिलावज अपन सबको एक साथ, भाई जो ऐसा कर रहा है उसको अपन कहें। अब सबसे बड़े एहसान तो हम पे अल्लाह ताला के ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहले हमदो सना अल्लाह की, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े, फिर दुरूद शरीफ पढ़े। अब एक बात बताओ हजरत, आप थोड़ा एक मिनट मेरी सुनना, क्यों आपके काम की बात है, आपसे लोगों के बहस मुबासे चालू रहते हैं। मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ आपको, जहाँ तक मैंने दीन को समझा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात सुनिए, सुन्नी जो लोग हैं जो बरेलवियत का दावा करते हैं, वो उनका बोलना ऐसा रहता है कि हमें रसूल की वजह से खुदा मिला है, समझे। तो हम पे तमाम एहसानात रसूल के हैं। अब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती कि अबू जहल और हजरत उमर फारूक नबी के सामने दोनों भी मौजूद थे, लेकिन अबू जहल ने नबी को क्यों नहीं समझ पाया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जिसे हिदायत दे, वो तो कुरान में इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, हाँ सीधी सी बात है, अल्लाह ने हजरत उमर फारूक को हिदायत दी थी। यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता, कुरान में। आज भी हुजूर के और इस्लाम के खिलाफ अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन उनको हिदायत नहीं मिल रही है। अभी हम भी 72 जगह बटे हुए हैं, तो सब तो सही जगह पे नहीं हो सकते, तो फिर उनको हिदायत ही नहीं मिल रही है। हैं? तो सबसे बड़ा अल्लाह का ही एहसान है पर कि अल्लाह ने हमें मुसलमान भी बनाया और हमें इतना बेहतरीन और तमाम नबियों से आला और अफजल नबी अता किया। मैं बताऊं आपको खास बात बताऊं, हक अच्छा, जो है, नहीं हक जो है ना वो सभी फिरकों में बटा हुआ है। हाँ, कुछ देवबंदियों में, कुछ बरेलियों में, कुछ अहले हदीस में, कुछ शिया, सब में बटा हुआ है हक। आप एक में नहीं तलाश कर सकते। थोड़ा इधर से हक ले लो, थोड़ा उधर से ले लो, जहाँ हक नजर आ वहीं से लो। हाँ, और ऐसे ऐसे फार्मूले छोड़ते हैं ये मौलवी कि कुछ लोग ना अगर ईमान है उनके पास तो ईमान से चले ही जाएं। अब एक बात सुनो, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौला अली, दो पे कंपेयर चालू हो गया है, मतलब थर्मामीटर लेके बैठे हैं। ये फार्मूला तुम्हें पब्लिक में छोड़ने की क्या जरूरत है। मैं बताऊं आपको, हाँ, आज के जमाने में अगर कोई नाइबुल मुजद्दिदीन है और आज के जमाने में कोई इमाम अहले सुन्नत कहने का हकदार है तो वो हजरत मौलाना शाही इमाम उस्मान साहब पंजाब है। वो उनकी बात इस्लाम बता रहे हैं, है कि नहीं। हाँ सही है, उनकी बात जो है ना अल्लाह रसूल पर ही होती है, ये बात सच है। ना देवबंदी बनाते, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, वो किसी फिरके का नाम भी नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बात तौहीद पर ही होती है, वो अल्लाह रसूल पर ही बोलते हैं। बल्कि अगर नासिक में आ जाए ना तो इनकलाब आ जाए, लेकिन नासिक वाले उनको काफिर समझेंगे, जितने भी इमाम है ना ये कहेंगे काफिर है। नहीं, वो एक किस्म की ना जैसे देवबंद है वो भी अंधभक्त है, वो तो कुरान हदीस की बात में है। अगर उनकी बात कर ले उदयपुर के नौजवान के, यार शाही इमाम पंजाब को बुला ले तो वहाँ के तमाम इमाम कहेंगे नहीं ये काफिर है। हाँ, और अगर कोटा में बुलवा लें कुछ नौजवान सुन्नी लोग देवबंदी तो बरेलवी लोग यही कहेंगे नहीं ये इमाम काफिर। विज्ञानगर के इमाम, चंबल गार्डन का इमाम, साजिद जड़ा का जो मौलवी है रामपुर का, ये भी यही कहेगा काफिर है। यानी वो एक काफिर क्यों कहेगा कि ये देवबंद वालों में आते आते इसलिए काफिर। अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें देवबंद वालों से क्या मतलब, उन्हें ना बरेली वालों से मतलब, वो तो इस्लाम बयान करने आते हैं। सबसे मतलब रखते हैं, मतलब मुसलमानों से मतलब रखते हैं। हजरत एक मसला पूछने के लिए फोन किया था मैंने आपसे। दो मसले पूछो। अगर बरेली वालों से पूछो तो वो अपनी तरह से बताते हैं, देवबंदियों से पूछो तो वो अपनी तरह से बताते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बीच का बताऊंगा सीधा, और कुरान हदीस से बताओ जिसके पास प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। ये बात हाँ, न देवबंद से न बरेली से, न बीच का बताओ, मतलब कोई सा भी मत बताओ, मुझे कुरान और हदीस से साबित करके बताओ। कुरान से। हाँ, जुमे का देहातों में जुमे का क्या मसला है? और जहाँ पर ये बहुत गहरा मसला पूछा आपने। हाँ, कुरान में तो आया या
सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों जब तुम्हें पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन, फस आओ तो चल पड़ो इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ, वज़रुल बै और खरीद और फरोख्त को छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो जुमा के बारे में ये है कि अगर जहाँ 4 मोमिन रहते हैं किसी गांव में वहाँ जुमा हो जाएगा, हदीस शरीफ से था। 4 मोमिन रहते हैं किसी गांव में जुमा हो जाएगा। और ये इमाम अबू हनीफा के नजदीक बताते हैं शहर हो, मिस्र हो, फनाए मिस्र, ये हो वो फलाना ढेमावा का हो, ठीक है, वो अपने इमाम मानते हैं। लेकिन इमाम शाफी के नजदीक भी गांव में जुमा हो जाएगा। अच्छा। तो जब वो इमाम शाफी के नजदीक हो जाएगा तो वो भी तो कुरान हदीस से ही तो बताया ना इमाम शाफी ने। बिल्कुल, चारों इमाम बरहत है ना, चारों को मानते हैं, गाँव में जुमा हो जाएगा, बिल्कुल बिला कराहत जुमा होगा। इसलिए कि जुमे के दिन जोहर पढ़ोगे तो गवारा नहीं होगा। और वो भी, और एक हजरत एक बात और बता रहा हूँ, वो भी उस गांव की बात कर रहा हूँ मैं जिस गांव में सैकड़ों साल से जुमा होता चला आ रहा है। बिल्कुल बिला कराहत नमाज होगी जुमे का। मैंने बताया 4 मुसलमान रहते हैं जिस गांव में, 4। ये हदीस शरीफ से साबित कर रहा हूँ। कुरान की भी आयत आपने पढ़ दी। हाँ बस अब और क्या चाहिए। कुरान का ऐलान हो गया कि बस जुमे की नमाज की तरफ चले आओ, जुमे का वक्त हो जाए तो। अच्छा, अब ऐसे देखा जाएगा ना तो फिर बरेलवी लोगों में भी 100 साल से जुमा हो रहा है गाँवों में, फिर तो किसी की नमाज ही नहीं हुई 100 साल से। हाँ सही बात है। अब ये डबल नमाजें पढ़ने लगे हैं, मुरादाबाद में, रामपुर में, कहीं कहीं डबल नमाजें पढ़ने लगे हैं। कम बखत एक जोहर की पढ़ते हैं, एक जुमे की पढ़ते हैं। तो न तो इनकी जोहर सही होती न जुमा सही होता, दोनों ही नमाजें सही नहीं होती इनकी। तो आप अपने चैनल के द्वारा ना तो जोहर उनकी हो पा रहे, न जुमा इनका सही हो पा रहा। हजरत आप चैनल के द्वारा इस जुमे का जरूर ऐलान फरमाते रहें। नमाज होगी। हाँ, नहीं ऐलान भी करते रहे, लोगों को, आवाम को मालूम पड़ना चाहिए। अरे आवाम से मैं कह रहा हूँ जहाँ पर गांव में जुमा हो रहा है बिला कराहत पढ़े और माइक का इस्तेमाल न करें जब तक के ज्यादा जरूरत ना हो। माइक के बारे में तो देवबंद बरेली दोनों का एक ही हुक्म है। हाँ, तो देवबंद के आलिमों का भी यही हुक्म है, मुफ्ती शफी साहब बड़े बड़े आलिमों का, कि माइक नहीं लगाया जाए तो अच्छा है। लेकिन देवबंद वालों में तो ऐसा आम हो गया है कि इसका कोई जवाब नहीं। और बरेली वालों में, बम्बई में आम हो गया आपके। मुंबई में, बरेली में फिर इतना आम नहीं है जितना देवबंद वालों में ज्यादा आम हो गया। भोपाल में आप आ जाओ तो हर मस्जिद में माइक मिलेगा, जरूरत नहीं है माइक लगाए पड़े। जबकि फतवा रहीमिया में लिखा है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो गुजरात के थे ना, सूरत के, कुरान देव के, कि माइक हमारे आलिमों ने मना किया सख्ती से। यानी हाँ, अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो, भीड़ भाड़ हो, कोई ऐसा मसला हो तो फिर आप लगा, वो तो जरूरत के मुताबिक तो है ही चीज का। लेकिन बिना जरूरत 50 नमाजी और आप माइक ठोके पड़े हो, 50 नमाजी क्या 100 नमाजियों में भी बिना माइक की आवाज वैसी पहुंच जाएगी, क्या ख्याल है। बिल्कुल सही है। 100 में क्या, मैं तो कह रहा हूँ 10 सफों में भी आराम से आवाज पहुंच जाती है। सही बात है। लेकिन अब माइक हमारे यहाँ भी फैशन बन गया साहब, सिरोंज में भी। हाँ, हमारे यहाँ भी वही 150 आदमियों में माइक लगाते हैं हर नमाज में, जबकि जरूरत नहीं है। जरूरत के मुताबिक लिखा है, देवबंद वालों ने भी, बिल्कुल देवबंद के आलिमों ने भी मना किया कि न लगाया जाए। बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती शफी साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, ये बड़े बड़े जो आलिम हुए ना, वो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, बड़े बड़े उलमा ने मना किया कि इससे नमाज का खुशू खुजू खत्म हो जाएगा। अब उसमें नहीं, हम जानते तो नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं अपने अकली तौर पर। हमारे गांव में 4 मस्जिदें हैं और 4 मस्जिदों में 4-4 सुराइयां लगी हुई हैं। बताइए क्या जरूरत आ रही है इतनी सुराइयां लगाने की। अच्छा, और अजान जब होती है, जैसे मगरिब का ही वक्त है, कौन सी भी अजान हो रही है तो चारों का टाइम एक ही होता है। अच्छा, अब सब तरफ से अजान की आवाज आती है तो अब हुक्म ये है कि अजान के साथ साथ अजान पढ़ते रहो। हाँ, अजान का जवाब देना चाहिए। अब वहाँ पर कोई अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहा है तो कोई हय्या अला सलाह कह रहा है, समझे। तो अब वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, क्या पढ़े, कौन सी अजान पे जाए, किधर की आवाज ज्यादा है, क्या है, पूरी आवाजें टकरा जाती हैं सब। वो तो साहब डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन ये हो कि एक ही वक्त में अजान हो तो बेहतर है कि इसमें अजान का जवाब तो दे सकता आदमी, पहली अजान का जवाब दे दे जहाँ भी हो रही हो, जिसको अजान का आपको समझ में आ रहा पहली अजान है उसका जवाब दे दे बस। वो सब टाइम एक ही है ना, तो सबका साथ में अजान होती है, चारों तरफ से एक साथ आवाज आती है। तो फिर उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तो एक ही टाइम ऐसा है ना मगरिब का,
हाँ, अब ईशा है, फजर है, इसमें तो लोग अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी ये टाइम होना चाहिए कि वतन के लोगों को दिक्कत ना आए, यानी ये कि 2 टाइम मुकर्रर कर लें फजर में, बस ज्यादा नहीं। ये नहीं कि कहीं 5 मिनट बाद हो रही है, फिर 10 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, बस 2 टाइम मुकर्रर कर लें कि एक जगह 5 बजे होगी, एक जगह 5:30 बजे होगी। यानी शहर में अलग अलग बंटवारा कर लें कि इन इलाकों में 5:30 बजे होगी, इन इलाकों में 5 बजे होगी। ज्यादा नहीं कि आप 5 बजे अजान हुई, फिर 5:05 पे हो रही है, फिर 10 मिनट पे हो रही है, कोई को लेटरिन जाना है, कोई को बाथरूम जाना है, आदमी इंतजार करते करते सोचे यार मैं किसकी जवाब दूं, क्योंकि अजानों की आवाज तो माइक से सब जगह पहुंच जाती है। अच्छा, एक मसला और पूछ रहा था आपसे। नमाज फजर में अक्सर करके हम घर के सुन्नियों में, बरेलियों में सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाते हैं, और पीछे कुछ लोग लेट अबेर वाले वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो अब आप बताइए इस वक्त क्या हुक्म है? सलात सलाम पढ़ते हैं वो। हाँ, फतावा अमजदिया में तो ये लिखा है मुफ्ती शरीफ अमजदी साहब ने, फतावा फैजुर रसूल में है या किसी और में है, कि अगर ऐसा मुसलमानों को, नमाजियों को ये एतराज है कि हम बाद में आते हैं, हमारी नमाज छूट जाती है जमात, तो उन्होंने लिखा है कि तुलू आफ्ताब के बाद सलाम पढ़े, जब तक इंतजार करें कि वो लोग नमाज पढ़ लें। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ। कुरान पढ़ने को भी मना किया उलमा ने कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो बुलंद आवाज में कुरान न पढ़े, कुरान पढ़ने को मना किया गया है, यानी आहिस्ता कुरान पढ़े। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो फिर धीरे आवाज कर ले। अब अगर आपको सलाम पढ़ना है तो आप फजर बाद तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ो, या हल्की आवाज में भी पढ़ सकते हैं ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने एक कहा कि तुम 5 मिनट माइक से सलाम पढ़ो, 23 घंटे 55 मिनट तुम आराम करो, ये थोड़ी कहा अल्लाह ने कहा नबी पर खूब दरूद सलाम भेजो। ये थोड़ी कहा कि 5 मिनट भेज के तुम चले जाओ, हो गया सलाम, जो नहीं पढ़े उसे तुम भाभी बनाओ, मुसलमान न मानो उसको। मान लो वो जो 5 मिनट सलाम नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ रहा 2-2 घंटे सलाम पढ़ रहा, अलग बैठ के पढ़ रहा है। अब ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ हजरत, मैं गाँव में पहुंच जाता हूँ ना, तो मैं अगर देखता हूँ पीछे अगर एक भी नमाजी अगर नमाज पढ़ रहा है, तो मैं अपना हल्की आवाज में 2-3 शेर सलाम के पढ़ के, या नबी सलाम अलैका, और ये 2-3 शेर पढ़ के मैं निकल आता हूँ। बस अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। तो अब ना लोग एतराज करते हैं उस पर, बताऊँ, बोले ये बदल गया, ये फलाना होगा, ये ढमका होगा। पुराने लोगों से मालूम करना जिनकी उम्र 80 साल है, तो यही कहेंगे कि ये सलाम का रिवाज अभी 50 साल पहले ही शुरू हुआ फजर के बाद, वरना पुराने लोग आपको ये बताएंगे 80 साल की उम्र वाले, 90 साल वाले, नासिक वाले भी, कि साहब सलात सलाम पहले से मिलाद शरीफ में होता था, खड़े होकर सलाम पढ़ते थे लोग, सब खड़े होते थे अदब से। हमारे यहाँ भी पढ़ा जाता है, मिलाद शरीफ में खड़े होकर पढ़ते हैं हमारे सलाम, लेकिन ये फजर बाद ये रिवाज जो निकाला देवबंद वालों को चलाने के लिए निकाला है कि इनको भगाओ, इनको निकालो। ये तो हजरत आपने बड़े काम की बात बताई। मिलाद शरीफ तो पहले जैसा पहले तो हमने मिलाद ये सुना, मेरी भी 60-61 साल की उम्र है, हमारे बचपन में ये हालत थी कि हुजूर गौसे पाक तक का कोई जो बसरे की बारात है, ये फलाने कई आइटम मतलब फेमस है, तो ये भी पूरा मिलाद होने के बाद, सलात व सलाम होने के बाद, उसके बाद में ये जिक्र सुनाते किसी वली अल्लाह का। मिलाद यानी हुजूर अल्लाह रसूल का जहाँ मामला होता था, मिलाद शरीफ का मतलब है रसूल का जिक्र होना, तो वहां पर रसूल का ही जिक्र होता था। और ये मिलाद खत्म होने के बाद किसी ने कहा कि बसरे की बात सुनना आया मैं, तो उन्होंने क्या करा, सलाम पढ़ने के बाद ना फिर बैठे, फिर उन्होंने बसरे की बात सुनाई, यानी मिलाद खत्म कर दिया। सही बात है। हाँ, तो अब जो है ना, अब तो मैंने ऐसे भी मिलाद हजरत, अब तो ऐसे भी मिलाद सुन रहा हूँ कि कहीं कहीं तो मिलाद शुरू गौस पाक से होता है और खत्म भी गौस पाक पे ही हो जाता है। तरीके ही बदल दिए था हमारे यहाँ, कभी आपको मौका मिले तो आना, यहाँ भी मिलाद शरीफ होता है। अरे मैंने नेट पे सुना।